Okay. So first we have current ratio. Current ratio is current assets upon current liabilities. Then we have liquidity ratio, in which we have current assets minus inventory and current liabilities minus overdraft. I have put a star here because in the literature that I have read till now, nowhere I have found that we should deduct bank overdraft from current liabilities. But because all the students are referring to Nirali, and even in the exam papers, I have seen this, that they are doing current liabilities minus bank overdraft. So for your exam purposes, just remember this formula. Then absolute liquidity ratio. Here we will only include cash plus short-term investment because they can be converted into cash very quickly, divided by again current liabilities. Now tell me, here they have not deducted bank overdraft from current liabilities, but here they have deducted bank overdraft from current liabilities. So that is why, that is also proof that there is some inconsistency in this formula of liquidity ratio. Then debt equity ratio. Okay, it is long-term debt upon equity. What is the formula of equity? Equity is equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus plus profit and loss account balance. Okay. After that, proprietary ratio. What is proprietary ratio? It is balance of equity upon total liabilities. Okay, balance of equity upon total liabilities. Then capital gearing ratio. It is fixed interest bearing securities upon equity minus preference capital. Okay, so now let's analyze this in depth so that you can understand it. First, equity share capital, then preference share capital, then reserves and surplus, and then profit and loss account. After that, long-term debt, current liabilities, and then we have total liabilities. Okay, so let's analyze this now. Long-term debt, instead of long-term debt, what we will write is, and even preference share capital, we will write as 12% preference share capital and 15% debentures. Okay. Now we have seen current ratio, liquidity ratio, and absolute liquidity ratio. Now let's see what is debt equity ratio. Now tell me, where is debt given in this data? Where is debt given? I have written the 15% debentures. Okay, 10% debentures. And what is the equity? 12%. Yes, is it 12%? This is your long-term debt. Okay. Why we are not taking current liabilities? Yes, why not current liabilities? Because it is a short-term debt. Duration is less than 12 months. That is why we are not taking current liability. I am asking what is equity? Tell me what is equity. I just explained now what is equity. Is it the entire balance? Yes. Okay. So equity is this entire balance of equity share capital, preference share capital, reserves and surplus, and profit and loss account. We have already seen this. There is no confusion in this formula. Yes, have you understood debt equity ratio? Shall we move on to the next formula? Yes, sir. Yes, sir.
What is proprietary ratio? Okay, PR is proprietary ratio. It is equity upon total liabilities. Once again, we will take a total of equity entirely. This balance upon total liabilities. You will get your proprietary ratio. Now, this is the most important formula, capital gearing ratio. Okay, what is the name of the formula? It is capital gearing ratio. Now, what is the formula? It is fixed interest bearing securities upon equity minus preference share capital. Now tell me, what is fixed interest bearing securities? Yes, fixed interest bearing securities. Okay, understand. There are two types of securities. Okay. On one securities, you have to give a fixed interest or fixed return on investment. On the second one, the return on investment is variable or the interest is variable. What does this mean variable? It means you may either get some return on investment or you may not get any return on investment. Okay. In fixed interest, you will always get a return on investment. Okay. Now look at this liability side and tell me in which of these cases you will get fixed interest or any return on investment. Sir, Yes. can you tell the formula, full form of CGR? It is capital gearing ratio is equal to fixed interest bearing securities, fixed interest bearing securities upon equity Okay, sir. minus preference share capital. The G1 is gearing ratio, na? Gaining or gearing, sir? Gearing, GEAR. Okay, sir. Now what I'm asking is, out of this data, what is fixed interest bearing securities? For that, I have explained just now that there are two types of securities. First one is variable interest securities and fixed interest bearing securities. On variable interest, you may either get a return on investment or you may not get a return on investment. Okay. For example, equity share capital. Okay, you either may get a return on investment or you may not get a return on investment. Now, what I'm asking is, in what cases we will call it as fixed interest bearing securities? Preference share capital, Yes, preference share capital and debenture. yes, debentures. Okay, that is correct. See, I am not telling you answer. I am just helping you to get to the point where you want answer yourselves. Okay. तुमने पहले खुद से ही जवाब दे दिया है. ठीक है, तो क्या करना है फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज मतलब ये जो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एंड 15% डिबेंचर है, ये दोनों को आपको ऐड करना है. तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग. Bearing. अगर उन्होंने पूछा वेरिएबल तो Equity share capital. सिर्फ यही आता है और कुछ नहीं आता है. ठीक है, और कुछ भी नहीं आएगा. फिर यहाँ पे क्या लिखा है? इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो क्या करना है? सीधा इक्विटी का टोटल लेना है और इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करना है. ठीक है, ये समझ में आया कि ये? सर 12% पूरा निकाल के माइनस करना पड़ेगा जब सम सॉल्व करेंगे ना? हाँ हाँ, पूरा निकालना है. ओके सर. एक क्वेश्चन सर पूछता हूँ, क्यों निकालना है उसको? देखो, हमने ऊपर क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है, फिर डिवेंचर लिखा है. ठीक है,
अभी मैं नीचे बोल रहा हूँ इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर दो, तो क्यों करना है सर? अगर मैं इक्विटी लेता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ले रहा हूँ, आया ना? हाँ सर। क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ अपना न्यूमरेटर में, तो ये डबल डबल हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग इसको निकाल के जो भी बचा है वो इक्विटी को नीचे लिख रहे हैं और वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सर हाँ सर। कैपिटल गियरिंग रेशियो में हम लोग क्या निकालना चाहते हैं कि हमने बाहर वालों को कितना पैसा लिया है एज कम्पेयर टू हम कितना कमा चुके हैं आज तक। ठीक है। तो ये था कैपिटल गियरिंग रेशियो। अभी हमने 6 फॉर्मूलाज देखे, अभी और 6 फॉर्मूलाज देखेंगे। एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, मैं ये यूज कर रहा हूँ माउस, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म लिखना है यस। एग्जाम में। उसके बाद एक बात बताओ मुझे, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? कल देखा ना हमने,
बोलो हाँ या ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हाँ बोलो बोलो क्या हो गया। फुल फॉर्म नहीं, ऑफ मैं गुड फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला बताओ, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हाँ आगे आगे बोलो आगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, उसका दूसरा फॉर्मूला बताओ। वो हो गया उसका फॉर्मूला नंबर 1। ठीक, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नोट कर लेता हूँ, लिखता नहीं हूँ। बोलो सेल्स वापस। माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स तो सीओजीएस का फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 भी आपको यहाँ पे याद करना है। ठीक है, चलो अभी ये हो गए अगले 6 फॉर्मूलाज। मैं इसको भी एक बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का क्या मतलब है, जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब जो खर्चा हमारा हर रोज होता रहता है, तो हमको उसका रेशो निकालना है एज कम्पेयर टू सेल्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग रेशो। तो वो क्या होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। अभी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कहाँ से मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और सीओजीएस तो आपको पता है कैसे निकालना है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग नेट प्रॉफिट प्लस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन सेल्स करते हैं। एक बात बताओ, इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, इसका एक और नाम है, ये जो मैंने ब्रैकेट में डाला है, इसको और भी बोल सकते हैं हम लोग। इसको अलग तरीके से लिखेंगे तो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओपेक्स। पूछो कैसे, समझ में आया कि समझाओ ये। कुछ तो बोलो हाँ या ना। नो सर। देखो हमने कल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, यहाँ पर पहले क्या लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट ऑपरेटिंग इनकम, फिर यहाँ पे क्या लिखा, ओपेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, और फिर यहाँ पे क्या लिखा, नोपेक्स। फिर हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अभी वो लोग क्या पूछ रहे हैं, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बता। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट जो है, सॉरी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको हम लोग ऑलरेडी क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट चाहिए हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस नहीं करना है, ये ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है, बस ओपेक्स माइनस करना है और आपको मिल जाएगा आपका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, या फिर आप एक और चीज क्या कर सकते हो, या तो ऊपर से नीचे आओ या फिर नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अभी नेट प्रॉफिट हमको जो दिया है, इसमें से हम लोग इसको ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, ताकि क्या बचेगा फिर, ग्रॉस प्रॉफिट और ओपेक्स बचेगा। ठीक है, अभी समझ में आया कि वापस एक बार फॉर्मूला लिख के दूं स्टार्टिंग से। सर NOPEX ये है ना, नोपेक्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा उसका एनालिसिस करता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नेट ऑपरेटिंग इनकम
इज इक्वल टू ओपेक्स प्लस ओपेक्स प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, अभी मैं क्या कर दूंगा, इसको बस रीअरेंज कर दूंगा। ये देखो, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है, ये साइड चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और ये जो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इसको अगर ग्रॉस प्रॉफिट के यहाँ पे डाल दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला कैसे दिखेगा, अभी दिखेगा वो ऐसे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओपेक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस ओपेक्स माइनस। अभी समझ में आया क्या? ये फिगर देके समझाओ अभी। ठीक है, चलो अभी इसको फिगर देके समझाता हूँ। ठीक है, क्या बोलना क्या चाहता हूँ अभी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है 10, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है 9, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 6, और ग्रॉस प्रॉफिट है 2। ठीक है, 20। तो एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट कितना आएगा? बोलो बोलो, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, फटाफट बोलो। 7 आएगा क्या? 7, बैलेंसिंग फिगर 7। हाँ सर। यस सर। फिर अभी हमने इसको 7 लिख दिया है। ठीक है, अभी मैं ये फॉर्मूला में इसको डालता हूँ। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है? 7, ओपेक्स कितना है? 9, नोपी कितना है? 6। तो कितना आ गया बैलेंस? 10 आ गया क्या? यस सर। और या फिर मैं क्या लिखता हूँ, 20 माइनस 10, मतलब क्या, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओपेक्स, तो कितना आ रहा है वापस? 10 आ रहा है क्या? यस सर। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, या तो ऊपर से नीचे जाओ, मतलब ये वाला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओपेक्स, या फिर नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, मतलब ये वाला फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस ओपेक्स प्लस, सॉरी, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, याद रहेगा क्या? हाँ सर। तो इसीलिए मैं आपको वो फॉर्मूला बता रहा था बार बार। उसके बाद मैं इधर एक और लिख देता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओपेक्स, ताकि आपको याद रहे, और इसको एक स्टार लगा देता हूँ। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। क्या है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर आता है इक्विटी, सॉरी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का क्या मतलब है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज लेना है। ठीक है, वो क्या है, वो टीआर के पहले? आय है, आय वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ट्रेडिंग क्या सर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, ओके सर। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो वो हो गया सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। फिर आया डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है,
डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। एक बात बताओ, इन्होंने क्रेडिट सेल्स क्यों लिया है? पूरा सेल्स क्यों नहीं लिया? प्रॉफिट, प्रॉफिट वाला सेल, जो सच में अमाउंट आ गई उसकी क्रेडिट में। सेल्स के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट। कैश मतलब क्या होता है? वो कस्टमर वही के वही आपको पेमेंट कर देता है, ठीक है। क्रेडिट में क्या होता है? वो आपको बोलता है कि मैं थोड़ा बाद में पेमेंट करता हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ये जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स मतलब कौन? ये वही कस्टमर्स है जिनसे हमको पैसा आना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कौन सा सेल्स कंसिडर करें? सेल्स कंसिडर करें टोटल वाला या कैश वाला, क्रेडिट वाला? क्रेडिट वाला। इसीलिए हम लोग क्रेडिट वाला सेल्स देख रहे हैं, ठीक है। डेटर्स का क्या मतलब है? वो हमारे कस्टमर है, हमने जिनको माल भेजा है लेकिन उनका पेमेंट आया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसको सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं सेल्स। तो ये हो गया क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, ठीक है। ये आज हमने टोटल 12 फॉर्मूलास खत्म किए हैं। आपको फटाफट जो पहले 10 क्वेश्चन है, मैंने जो आपको बुक सेंड की है, सैटरडे संडे 2 दिन में खत्म करनी, ठीक है। 5 प्रॉब्लम दिन के खत्म करने हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ तो 20 या 30 मिनट्स लगने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। 2.5 या 3 सर घंटे। बोलो। ये डेटर्स मतलब डीटीआर में हाँ, डेटर्स एवरेज यही डेटर्स, यही है डेटर्स। उसमें क्या क्या आता है? चलो वापस एक बार। एक होते हैं डेटर्स, और एक होते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। अभी हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो हमारी लायबिलिटी की एसेट है। उसका पेमेंट नहीं किया तो लिटी। ठीक है, लायबिलिटी। लायबिलिटी है। पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स, ठीक है। हमको जिनको पेमेंट करना है रॉ मटेरियल के लिए, उनको बोलेंगे क्रेडिटर्स। ये हो गया क्रेडिटर्स का मतलब, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो इसमें आता है ना? इसमें आता है डेटर्स। नहीं नहीं, ये करंट सन्ड्री लायबिलिटी, क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स में आएगा। करंट लायबिलिटी में आता है, ठीक है। और डेटर्स कहाँ पे आता है? करंट असेट में आता है। अभी समझो डेटर्स क्या है, ठीक है। मैंने 10,000 गुड्स बेचे। कितने? 10,000 गुड्स बेचे। उसमें से मुझे 8,000 रुपए के गुड्स के का पेमेंट ऑन द स्पॉट मिल गया, ठीक है, ऑन द स्पॉट मिल गया। 2,000 के जो मैंने गुड्स बेचे उनका पेमेंट आया नहीं। तो मुझे वो मेरी एसेट है कि लायबिलिटी है? मुझे जो पैसे आना वाला है वो लायबिलिटी। हमको अगर बेनिफिट मिलने वाला है, हमको अगर पैसे मिलने वाले हैं, तो वो लायबिलिटी कैसे हुई? एसेट हुई ना, यस सर। ठीक है। तो ये हमको पैसे आने वाले 2,000 रुपए, 2,000 गुड्स के। तो हम क्या बोलेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे असेट साइड में। क्या नाम से रिकॉर्ड करेंगे? तो हम उसको बोलेंगे डेटर्स, ठीक है, डेटर्स। ये ऐसा केस नहीं है कि हमने किसी को पैसे उधार दे दिए और पैसे आने, ठीक है। हमने इज्जत से हम प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को बेचा। उसके बाद हम लोग उसका पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम उसको सेल नहीं करते तो हम लोग ये डेटर्स को रिकॉर्ड नहीं करते। समझ में आया? यस सर। तो कौन होता है डेटर्स?
बताओ डेटर्स कौन होते हैं? हमने जिनको गुड्स बेचे हैं लेकिन गुड्स का पेमेंट आया नहीं है, पेमेंट आने वाला है। क्रेडिट जैसे बेचे, हाँ। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमने जिनसे रॉ मटेरियल खरीदा है लेकिन हमने उनको पेमेंट किया नहीं है, पेमेंट करना है, उनको बोलेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, ओके। सर, बोलो। are you going to upload this video on a YouTube channel also, sir? अरे भाई थोड़ा बाद में बोल ले, पूछ लेता, मैं रिकॉर्डिंग एडिट करना पड़ता है मेरे को। Oh, sorry, sir.